web page or means a web page data in your mining technique. So can anyone tell me the which are the pre-processing steps, or have you tried the means conversion ARF file, or it may be your data set to term document matrix? Anyone has tried? See, these are the common question in your web mining subject. After completion of the subject, what is web mining? Which are the category of web mining? What's the requirement of means why web intelligence, and which are the basics common question, that's a which are the steps for pre प्रोसेसिंग कि वेब पेज में कुछ भी टेक्निक अप्लाई करने से पहले क्या करना है. क्राउलिंग मतलब वॉट एवर इट में बी स्क्रैपिंग. तो डाउनलोड योर वेब पेज, download your data means parsing, so we'll get the exact content without HTML tag. Then apply the pre-processing, for example tokenization, stemming, remove the stop words, then convert into your required file. It may be .csv file, or it may be .arff file, or it may be normal text file, and then apply your machine learning techniques. So these are the 4 or 5 steps you have to write down in the pre-processing. ओके इसमें से कितने के पास अभी लैपटॉप है? एनीवन? बाकी सब तो मोबाइल से ही मोस्टली. रजत, ओके गुड. मोबाइल वाला लिखो मत कौन. लैपटॉप वाले कितने हैं? प्रत्युष, रजत 2, अमन, हाँ, पार्थ, भानुशाली, ओके ओके. सी एक स्टेप्स बता देता हूँ प्रोजेक्ट के लिए, जो अभी हमने थोड़ा मतलब ऐसा कह सकते टुकड़े टुकड़े में स्टडी किया था. जो मैंने कल डेटा सेट दे दिया, ऐसा सेम डेटा सेट यू हैव टू प्रिपेयर यूजिंग स्क्रैपी. स्क्रैपी में भी शायद जिन्होंने ट्राई किया है ऑलमोस्ट हो चुका है, जिसका एटलीस्ट 5 स्टूडेंट, उन्हें पता है कि हाउ टू डाउनलोड वन वेब पेज. इट मे बी एनी साइट. जैसे एक पेज कैसे डाउनलोड करना, आई थिंक वो 4-5 मिनट का हो चुका है. Now you have to download more than one pages, at least 300, 600, and prepare the data set. And then apply any technique. It may be classification, it may be clustering, or it may be other machine learning technique. On that data set, that's our complete practical. Then you can say that you know about the something web mining or web intelligence. तो ये टास्क करना है, इसलिए मैंने अभी शॉर्ट में करा दिया था. जैसे पहले थोड़ा स्क्रैपी कराया, देन क्लासिफिकेशन में हाउ टू यूज दिस इनबिल्ट फंक्शन, दैट्स फ्रॉम डिसीजन classifier tree. So you can use any function, for example neural network, Bayesian network, and that's you directly use the inbuilt function. No need to implement that code because that's already existing, so no need to create same thing. But download the data set and apply. For example, even I think I have seen one data set I have discussed with the phishing data. Similar type, site is fake or not. That data set is also available from the net. So try to understand that data set and then apply any whatever technique. This is the main concept of this subject. ठीक है, आप इतना ज़्यादा बोरिंग मत लो, इसलिए मैं थियरी इतना पढ़ाता भी नहीं हूँ, क्योंकि थियरी वैसे भी मतलब कम पार्ट है, कंटेंट उसका थोड़ा कम है मतलब कंपेयर टू प्रैक्टिकल. अब प्रैक्टिकल में तो आप सब ऑनलाइन और मोबाइल से ज्वाइन करते हो, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता. और इसलिए मैं 1-to-1 फॉलो भी नहीं रहता कि भाई शेयर योर स्क्रीन आपने क्या किया क्या किया. अभी तक जितने एरर है मोस्टली मैं सोल्व कर दिया, खाली एक एरर बाकी है कवन की, स्क्रैपी में नहीं हो रहा था, फिर वो टाइम नहीं मिला शायद उसके लिए, नहीं है पता नहीं. बाकी मैं भी ट्राई करता हूँ एरर जो भी सोल्व करो. जैसे मैंने कल बताया था कि वेका में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब थ्रू यूजिंग वेका, हाउ टू कन्वर्ट ARF फाइल टू मैट्रिक्स फाइल. That also available in Python, and that's I think function, or you can just review this video, then you can easily do that. uh, Share my screen.
So just simply whatever any problem you are facing in this subject, just simply go to means tell me, or it may be just go to YouTube and just find out the solutions. You will find the exact solution in Python. Okay. See this one. Using TF-IDF to convert unstructured text to useful features. So just observe the video and just find out the how to convert your data unstructured text. Unstructured, that means just simply there is no specific structure like JSON data. JSON डेटा में क्या हर एक में स्ट्रक्चर फिक्स होता था कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट तो स्टूडेंट का नेम, एनरोलमेंट नंबर, मार्क्स, रिजल्ट, जितने भी फील्ड रहते हैं वो हर एक के लिए फिक्स रहते हैं. बट अनस्ट्रक्चर में देर इज नो फिक्स, नथिंग फिक्स, जस्ट ओनली टेक्स्ट डेटा. Or maybe just unstructured, there is no specific structure. So just simply observe the video and you can implement this one or try this one to convert unstructured text to useful features. Hey everyone, welcome to week 4. Okay, so today I want to show you a little bit about. Anyway, आप ये खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि अभी मोस्टली सब मोबाइल से हो तो मुझे कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है. वो तो जब आप खुद प्रैक्टिकली ट्राई करो तब ये देखना, अभी कोई इतना ज़रूरत नहीं लग रही. But this is the video using a TF-IDF to convert unstructured text to useful features. और उसके बहुत सारे वीडियो उसमें यू कैन यूज एनी वन. मैं भी ट्राई करूंगा, जो मेरा डेटा सेट है उसमें अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा. ठीक है, विद इन टुडे और टुमारो. ओके, इज देयर एनी अदर क्वेरी? आपको कुछ डाउट हो तो पूछो. प्रैक्टिकल सही में हो चुका है 1 और 2 कि मुझे वहीं से स्टार्ट करना है? क्योंकि एग्जाम में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा. हाँ, कोडिंग नहीं पूछूंगा, बट प्रैक्टिकल पर्पज के. इसके बाद ये स्टेप आता है तो क्या करना है. कुछ तो बोलो कि मोबाइल से ज्वाइन करके साइड में तो नहीं रख दिया. वन टू वन ही लेना पड़ेगा फॉलो. हाँ, डाउट तो, लेकिन आपने तो कहा इतना कुछ ज़्यादा अटेंड किया तो बताओ. चलो कोई बात नहीं. ध्रुव, कितना किया प्रैक्टिकल्स में ये सब्जेक्ट में? सही में बताना, जो भी आपने किया. इट मे बी ओनली नो क्लियर मीन्स व्हाट्स अ डाउट. कुछ कुछ बताओगे तो मैं सोल्यूशन फाइंड कर पाऊँ. या फिर सभी मतलब सारे सब्जेक्ट में इस तरह से इंटरेस्ट लेते हो? अच्छा, क्लियर सर, नो डाउट. ओके. नहीं मतलब सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही बैठे रहते हो, क्योंकि पहले तो आप ऐसे नहीं थे. कोई कभी कुछ पूछता ही नहीं है. खाली 4-5 स्टूडेंट वो मुझे पूछे थे कि सर इसमें एरर आ रही है, हाउ टू सोल्व दैट. उसका मैंने शायद सोल्व कर दिया. बाकी सब और यू आर वेटिंग फॉर माई सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन तो मैं लास्ट में शेयर कर ही दूंगा, डोंट वरी. आफ्टर द मिड सेम और इट मे बी बिफोर द एंड सेमेस्टर, आई विल शेयर ऑल द सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल 1 to 9 as well as assignment 2. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. एक तो लैपटॉप साले 2-3 लेके बैठे हो. चलो कोई बात नहीं. एक तो सो लेट्स स्टार्ट द थियरी पोर्शन एनीवे. क्योंकि आप सब लैपटॉप लेके बैठे ही नहीं हो तो फिर मैं क्या प्रैक्टिकल में एक्सपेक्टेशन रखूं. सो लेट्स स्टार्ट द थियरी. कंटिन्यू. आई एम टू जस्ट क्लोज दिस.
And okay, guys, today is the 25th February, and just wait, calendar कहाँ गया? Next Friday or today. ओके, प्रैक्टिकल 2 में क्या करना है वो एक बार फिर बता दो सर। ओके, कौन है? जस्ट वेट गाइस, नेक्स्ट वीक फ्राइडे 5th March there is one test. Okay, there is one MCQ test, and I think where is the lab session, क्योंकि लेक्चर में तो आप सबका सेम ही रिजल्ट आएगा। लैब सेशन आ रही है एक 4th, मतलब टुडे, ओके, थर्सडे, एंड वेयर इज दिस सेकंड लैब? मंडे, ओके, so 4th and 8th. Okay, okay, so there is one class test, MCQ test, or maximum 20 marks in a lab session. For one batch, that's which one? A batch, that's Thursday. Okay, for A batch, test will be on Thursday, 4th March. For B batch, Monday, 11th March. नहीं, 11th, how it can be 11th? 8th. Okay. ओके, देखो ये मार्क्स में कहीं कंसिडर नहीं करने वाला। है सर यहाँ, बाकी मुझे पता है कि लोगों को ये भी नहीं पता सर व्हाट इज वेब माइनिंग, सर ये कब स्टार्ट हुआ था, क्या है ये? टू क्लास टेस्ट, मतलब सॉरी क्लास टेस्ट 1 है, बट बोथ द डिफरेंट डिफरेंट बैच, और क्वेश्चन सेम नहीं रहेंगे, इसलिए वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, वैसे मुझे जानते ही हो। ओके, कौन प्रैक्टिकल 2 में क्या करना है? ओके, लेट मी चेक, आई थिंक तो कंपेयर डिफरेंट सर्च इंजन, यस जीत, हाँ ओके। सी प्रैक्टिकल 2 में कौन आपको जो सर्च इंजन है उसकी कंपैरिजन करना है। जैसे अभी मोस्ट प्रोबेबली हम क्या यूज करते हैं, गूगल, बट गूगल के भी ड्रॉबैक्स है, गूगल सर्च इंजन के भी ड्रॉबैक्स है, तो आपको थोड़ा एनालिसिस करना। तो एनालिसिस क्या करना होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल आप जो भी गूगल पे सर्च करते हो ना, सेम स्ट्रिंग आपको गूगल पे भी सर्च करना है, याहू पे भी सर्च करना, मतलब याहू सर्च इंजन, एक है बिंग, एंड फोर्थ वन डक डक गो। ये चारों सर्च इंजन में सर्च करो। मैंने लिस्ट 3 बोला है, बट यू कैन ट्राई विथ 4। आई एम जस्ट राइटिंग योर नेम, गूगल, याहू, बिंग, एंड डक डक गो समथिंग, या ये चारों सर्च इंजन में एक सेम स्ट्रिंग सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी रूटीन लाइफ में, मतलब जो भी, फॉर एग्जाम्पल अपने जैसे ये ले लो कि हाउ टू कन्वर्ट, और व्हाट इज TF-IDF, व्हाट इज TF-IDF फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा समथिंग, जो भी स्ट्रिंग हो, ये चारों में सर्च करो, ऑब्जर्व करो उसका क्या आउटपुट आ रहा है।
सेकंड, फॉर एग्जांपल कुछ डेफिनेशन फाइंड करते हो, सर व्हाट इज वेब माइनिंग, ये भी चारों में सर्च करो, इसमें एग्जैक्ट डेफिनेशन और सही आंसर जो आपको चाहिए था वो कौन सा अच्छा लग रहा है, फ्रॉम दिस फोर सर्च इंजिन कौन सा सही लग रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल गूगल में क्या होता है, वो इंटेलिजेंस ही खुद से अप्लाई कर देता है। अगर मैं ज्यादा ये सब्जेक्ट का गूगल में लास्ट में सर्च कर रहा हूँ 1 महीने से, वेब माइनिंग, तो अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना कि वेबसाइट में, मेरा वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में दूसरा वो भी पढ़ा रहा हूँ 6 सेमेस्टर में, वेब टेक्नोलॉजी, HTML एंड PHP समथिंग, और अगर उसमें मैं खाली ऐसा लिख रहा हूँ ना कि वेब माइनिंग या वेब पेज, तो भी वो मुझे माइनिंग के सजेशन दे रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट 1 मंथ से वही सर्च किया था गूगल में, तो वो मुझे वेब माइनिंग के पहले सजेशन दे रहा है, ये चाहिए, ये दिस इज आउटपुट, बट मुझे चाहिए एक्चुअली वेब पेज, जो हाउ टू मतलब यूजिंग CSS, HTML एंड PHP। तो ये जो कंपैरिजन मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा एटलीस्ट रिपोर्ट में लिखना है कि विच वन इज बेटर, विच वन इज नॉट गुड और नॉट अप टू द मार्क, जो भी लिखना है, मैक्सिमम 2 पेज, मैक्सिमम 2 पेज, और मिनिमम 1 पेज में तो होगा, आपको चारों के बारे में लिख दो। इससे ज्यादा भी एनालिसिस आप कर सकते हो, तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। इफ यू ट्राई देन यू विल नोटिस मोर फीचर्स और मोर थिंग्स कि सर हाँ इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। जैसे शायद एडवांस सर्च कितने मतलब इसमें प्रोवाइड कर रहा है, याहू, बिंग, आई डोंट नो। मैंने जैसे बिंग में ट्राई किया हुआ है और याहू पहले बहुत किया था, बाकी अभी मैंने लास्ट में गूगल और बिंग दोनों में कंपेरिजन मेरे पास है, बाकी दो का तो मेरे लिए भी बाकी है, याहू और डक डक गो। तो दिस इज योर सेकंड प्रैक्टिकल। ठीक है, देखो इसमें वेबसाइट में आपको बहुत कुछ सीखना है, पहले आपको ये भी नहीं है, जैसे कि मुझे आपको पढ़ाना चाहिए था ये HTML और बेसिक HTML एंड CSS और जावास्क्रिप्ट, तो वो भी खुद से थोड़ा स्टडी करो, बिकॉज यू हैव टू हैव समथिंग अबाउट अवेयर अबाउट दिस वेब पेज, व्हाट इज XML, HTML, टैग के नाम क्या है, भले सिंटेक्स रट्टा नहीं मारना है, वो तो गूगल पे भी अवेलेबल है। इवन मैं 6 में पढ़ा था, वो वहाँ पे भी नहीं बोलता हूँ कि आपको रट्टा मार के आना है। हाँ, पॉइंट ऑफ जस्ट खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टैग के नाम थोड़ा याद रखना, दैट्स फाइन। बाकी गूगल पे सारे कोड अवेलेबल है, बट वो जो भी एलिमेंट है उसका पर्पस पता होना चाहिए। जैसे वेब पेज में से हाइपरलिंक फाइंड करना हो, तो वो तो नॉलेज होना चाहिए कि हाइपरलिंक कहाँ पे होती है, क्या हाइपरलिंक है, तो उसके लिए टैग का नाम क्या है, बस उतना नॉलेज चाहिए। फिर आपको तो उसका हाई लेवल का ही करना है, उसके बाद का जैसे ये सर्च इंजन करना है कि स्पामिंग जो आता है, स्पाम फिल्टरिंग, वो स्टडी करो, फिशिंग डेटा वाला फाइंड करो। सी स्टडी करने के लिए अपने पास बहुत कुछ है, बट इसमें मैं ज्यादा कंटेंट इसलिए ओपन नहीं करता क्योंकि अपनी भी लिमिटेशन, अगर जैसे मैं ऐड कर दिया और लास्ट में नहीं हुआ तो, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो मीन्स दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो न्यू फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए भी नया सब्जेक्ट, मैंने किया नहीं है इतना, इसलिए मैं इतना ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट नहीं देता था। अगर प्रोजेक्ट दे दूँ और फिर मुझसे भी नहीं हुआ तो, इसलिए मैं जितना मुझसे ट्राई हो रहा है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। बट वी कैन ट्राई, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। सो दिस इज योर प्रैक्टिकल 1 2। 1 में तो XML जैसा एक बार समझ लो, 2 ये था, थर्ड स्क्रैपी समथिंग और इनमें भी क्लासिफिकेशन। ओके, थर्ड में है स्क्रैपी, फोर्थ में क्लासिफिकेशन। बस मैंने अभी फोर्थ तक थोड़ा बहुत कराया था, उसके बाद तो सब कुछ बाकी है। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन, तो उसमें बहुत सारे टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई मोर देन वन टेक्निक एंड जस्ट मेक द कंपैरिजन, यू कैन एंड यू कैन पब्लिश योर रिसर्च पेपर ऑल्सो। मैंने मेरा एमटेक का थीसिस इसमें ही किया था, जो मैंने कल थोड़ा डिस्कस किया, कि मैंने दूसरा एल्गोरिथम अप्लाई किया था एंड मेक द कंपैरिजन। सो यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। जैसे ब्लॉकचेन में भी शायद सेम प्रोसेस आप कर रहे हो। अब ये सारे सब्जेक्ट थोड़े इस तरह से ही आएंगे। ओके, नाउ इज देयर एनी अदर क्वेरी, अदर डाउट्स? और आप थोड़ा डाउट पूछोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप थोड़ा सुन रहे हो और समझ रहे हो कि क्या करना है। और इफ रिक्वायर देन आई विल पुट वन प्रैक्टिकल टेस्ट। सभी को कंपलसरी लैब में मैं लैपटॉप लेके बैठाऊंगा और उसमें मैं टास्क दूंगा, वो करना है कंपलसरी।
ओके निशी, गुड, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत स्क्रैपी कर लिया है इसलिए। अब स्क्रैपी में आगे आपके लिए टास्क ये है कि हाउ टू डाउनलोड मोर देन वन पेज। एक पेज तक आपका साथ रजत, हर्ष, किशन, जीत, कवन, नहीं कवन का तो बाकी बाकी इतने सारे 4-5 लोगों का तो हो चुका है। चलो गुड, चलो एक को तो डाउट नहीं है, चलो बाकी सबको क्लियर। सर कौन सा टास्क बोला आपने? हाउ टू डाउनलोड मोर देन वन पेजेस यूजिंग स्क्रैपी, क्योंकि अभी तक मैंने एक पेज ही कराया है यस सर। ये, बट हमें पूरी वेबसाइट चाहिए या तो नंबर ऑफ पेजेस चाहिए। और चलो आपको मैं लिंक बता देता हूँ जहाँ से मैं स्टडी करता हूँ, फ्रॉम यूट्यूब ओनली, नथिंग एल्स। उसमें जो उसने अच्छे से बताया हुआ है कि हाउ टू यूज स्क्रैपी, जो मैंने सब पढ़ा है ना उसमें वही वो वीडियो में बता रहा है, क्योंकि मैं वो वीडियो देख के ही आपको सिखाया था। बोल के लेट मी चेक बताता हूँ। तो उसमें ये भी है कि हाउ टू डाउनलोड कंप्लीट वेबसाइट, आई थिंक नंबर ऑफ पेजेस। तो एक बार वो देख लो और खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि वो तो वीडियो देख के वो उसमें है तो मैं कर पाऊंगा, डोंट वरी। और उसने मैंने यही वीडियो फाइंड किया था जो मैं कर रहा हूँ ना, सब लाइन वाला, इसलिए मुझे पाइचा मेंढा कोंडा का तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ये मैंने किया हुआ है एंड इट्स वेरी इजी। Understanding data structures and algorithms is difficult. Don't worry, Log2Base2 can help you. With Log2Base2's visual videos, you can start visualizing the data structure and algorithms concepts, build the algorithm, learn how to analyze the time and space complexity. सर स्क्रीन शेयर करना। ओके, दिस इज द वीडियो। Okay, my screen is I think visible and अरे यार, तो ये पूरे या ओके, यस सर, इसमें और यस कर देता हूँ, वेट। थोड़ा सा where is my cursor? देखो ये पूरी सीरीज है, मतलब ट्यूटोरियल्स की, ट्यूटोरियल 1 2 आई थिंक 12 15 तक है, ठीक है। मैंने इसमें से ही आपको पढ़ा था स्क्रैपी क्या है, देखो उसमें वो भी वही टाइपिंग कर रहा है, सेम थिंग, स्क्रैपी क्राउल एंड वॉट एवर स्पाइडर नेम एंड आउटपुट फाइल्स, ठीक है। तो आई थिंक 25 टू वीडियोज है। देखो लास्ट वीडियो, स्क्रैपिंग मल्टीपल पेजेस ऑफ अमेजॉन, बस इसमें से ट्राई कर लेना, बाकी मैं उसमें से देख के मैं ट्राई करके आपको दिखाऊंगा, नथिंग एल्स। तो ये लिंक शायद मैं कॉपी कर लिया एंड पेस्ट हियर, चेक कर लेता, वही लिंक है ना, हाँ बस। ओके, ठीक है। सो दिस इज योर नेक्स्ट टास्क, हाउ टू डाउनलोड मल्टीपल पेजेस। दैट मीन्स कि यू नो अबाउट स्क्रैपी एंड क्राउडिंग, उतना हो जाएगा। सो दिस इज योर थर्ड प्रैक्टिकल। थर्ड प्रैक्टिकल में एक ये स्क्रैपी से ओके, मैंने यहाँ पे अच्छा एक ही वेबसाइट लिखा है, ठीक है। कोई भी एक वेबसाइट से ऑनलाइन से कर देना, पर सबका मुझे एटलीस्ट अलग अलग चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ने किया और सबका वही कॉपी आ रहा हो। ट्राई डिफरेंट वेबसाइट, अमेजोन, IMDb,
फ्लिपकार्ट, और इनमें भी अदर साइड, उसमें स्टार्टिंग में दूसरी साइड भी दिखा रहे हैं। आई थिंक कोड्स टू स्क्रैपी समथिंग, जो कोई भी वेबसाइट है, पर सबका कॉमन वही ना, एज इट इज कॉपी, एक ने किया और बाकी सारे क्लास में कॉपी, तो वो नहीं करना, ठीक है। Okay, so this is your next task, and now last we have to discuss pending from C. In last lecture we have discussed a Boolean model. That's a model of IR, information retrieval. उसमें फर्स्ट था बुलियन, सेकंड वेक्टर स्पेस, हमने इतना डिस्कस किया था। उसके बाद है नेक्स्ट एक सिमेंटिक, एक एंड यस द एनी क्वेरी, यू रेज द हैंड, दैट्स व्हाई। एनी डाउट, देन टेल मी। ओके, and remaining three, semantic and probabilistic, we will discuss tomorrow, and then that chapter will be complete. That's a unit 3. Okay, and then we will again move to the classification, but before that I need to complete practical 1, 2 and 3. So before the mid-sem, I can say that okay, we have completed unit 1 to 3 as well as practical 1 to 3. And then we again move to the classification, clustering, recommendation systems, and Google Analytics. That's our main content. Where is our syllabus? Okay, so this is our syllabus. And also I upload the ebooks. That's I think 2 or 3 uploaded number of books, so you can refer that one only. That's enough for our subjects. Opening fast, yeah. See, second, just simple what is web intelligence and what is a semantic web, what's a level of VI, what's a requirement, and this whole theory. Here we have completed up to this one, and right now we have just discussed last lecture, that's some models of IR. Okay, and in the 4th unit we have started up to this one only, introduction of data mining, web mining, and classification. That's okay, this one. So this is the complete use topic, these 3, because that's the main thing about the web mining, nothing else. And after that, directly move to the intelligence algorithms, and we can also focus on this also main, that's a recommendation engine or recommendation system, how we can recommend to particular customers based on history or based on that interest. Okay, and see, how many of you your own blog, web blog, because we have to make one web blog and then we can do this web analytics, because otherwise Google will not provide the features of this analytics or how to find out the analysis. It may be your YouTube channel or it may be any web blog. Okay, so just try to implement your web blog before the 1st April, because in April month we will start this last unit, and there is one practical also, this one. Create a Google Analytics account by registering yourself with blog post. That means you have to just create your blog post. Means just create one blog, it may be any content related to your interest, and then we can find out the or register with Google Analytics. And let's we have to observe, means which kind of feature they are provide to find out the analysis of any website or any web blog.
Okay, then same thing for the YouTube also. So now, don't have blog. Ah, then you have to create. That's what I'm saying right now. See, ये सारे सब्जेक्ट में आपको ज्यादा वर्क करना है, प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है. हाँ, यस. ठीक है, गूगल में फाइंड कर लो हाउ टू क्रिएट योर ब्लॉग एंड जस्ट क्रिएट इट. और खुद का ब्लॉग हो, दैट्स फाइन. शायद एक दो स्टूडेंट का तो है ही, बाकी खुद से बनाना है. ब्लॉग, हाँ, ब्लॉग नहीं, मतलब ब्लॉग. ओके. क्योंकि बाकी गूगल क्या है, दूसरे की वेबसाइट में तो एनालिसिस करने को राइट्स देगा नहीं. जैसे मेरे पास मेरी खुद की वेबसाइट है, तो मैं शायद आपको खाली दिखा पाऊंगा कि मैंने ये वर्डप्रेस में बहुत पहले बनाया था और अभी उसका एनालिसिस ये है. वो आपको तो राइट्स देगा नहीं, बट आपको खुद से करना है कोई भी वेबसाइट. नो डाउट उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें शायद फ्री जो होगा थोड़ा बहुत वो लोग शेयर करेंगे शायद. बट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी खुद की वेबसाइट की लिंक देनी होगी, वेब ब्लॉग. दैट्स वाई दैट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लॉग. और हाँ, टेस्ट सिलेबस फॉर द योर क्लास टेस्ट, that will be the unit 1, 2 and 3 as per our syllabus. This one, what is web intelligence and web information retrieval. So we'll get the idea about your questions, how the question will be asked in mid exam. But as of now I'm just asking the class test, that's MCQ test, or mid exam it may be offline, or final exam also may be offline, because I don't know the exact idea. Even we did not receive any schedule also. क्लास टेस्ट कब है सर? क्लास टेस्ट मैंने बताया नेक्स्ट वीक में, मतलब विच बैच, ए बैच थर्सडे, बी बैच नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे. अगेन आई एम जस्ट राइटिंग हियर, बी बैच दैट्स 8th March and A batch that's 4th March. ठीक है, उसमें मेरा हाँ मिड सेम सिलेबस यूनिट 1, 2 and 3. and 25 minute timing. Okay, maximum marks 20 MCQs and 25 minutes, और में भी 25 इनफ है. चलो ठीक है, मेरे को ज्यादा एग्जांपल तो नहीं देने वाला, इसमें कोई एग्जांपल है ही नहीं. और बैच वाइज इसलिए रखा कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिफरेंट हो, बाकी तो पता ही है कि सेम कॉपी हो जाता है. तो ट्राई ऐसा ही करूंगा कि वो कॉपी ना हो. और हाँ, इसके जो भी मार्क्स है वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, डोंट वरी. आई विल नॉट कंसिडर योर टेस्ट मार्क्स इन एनी कंपोनेंट. ठीक है, वो मिड टर्म वर्क वाइवा किसी में कोई मैं कंसिडर नहीं करने वाला. बट मेरा टारगेट है, हाँ, और वो सेम रूल जो पहले था, इफ इट इज लेस देन 10 देन पनिशमेंट. उसमें असाइनमेंट मिलेगा लिखने के. इफ इट इज ग्रेटर देन 10 देन फाइन. ओके. हाँ, इसलिए थोड़ा बहुत रीड करके आना, बोले मैं मार्क्स कंसिडर नहीं, पर ऐसा नहीं तो मुझे इतना बुरा पड़ा था इसलिए. ठीक है, यूनिट मैंने आपको बता दिया, पीपीटी शायद शेयर कर दिया, अदरवाइज नहीं किया तो कर दूंगा आज. और एमसीक्यू है तो यू कैन जस्ट रिफर द पीपीटीज और इट मे बी योर रेफरेंस बुक. हाँ, डायरेक्ट एमसीक्यू मतलब मैं कंटेंट में थियरी में से इतना नहीं पूछूंगा, डोंट वरी. और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया वो इजीली आंसर दे पाएंगे. तो अगर अभी तक जैसे खाली मोबाइल से ज्वाइन करके बैठे हो तो थोड़ा स्टडी स्टार्ट कर देना.
चलो फिशिंग डाटा तो बाद में करेंगे, जब क्लासिफिकेशन फिर से कराऊंगा एक बार, तो उसमें फिशिंग डाटा में कर क्लासिफिकेशन एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट। दिस इज द सिंपल वन एग्जांपल। उसके अलावा एटलीस्ट आपको 4-5 करना है। ओके गाइस, नाउ आई एम टेकिंग अटेंडेंस because today only 1 hour. Where is the... एक्सक्यूज मी सर। Yes, yes. सर Yes, वो Rajat. सर जो आपने कल बताया था ना, वो प्रैक्टिकल है या क्या, जो आपने डेटा सेट अवेलेबल करा है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का? हाँ, प्रैक्टिकल मैंने उसमें ऐड नहीं किया है, बट यू कैन डू दैट प्रैक्टिकल विथ योर रिसर्च पेपर इफ यू वांट। प्रैक्टिकल इसमें उसको कुछ ये सबमिट नहीं करना है, डोंट वरी, बट दैट इज पार्ट ऑफ TFID, दैट्स आवर पार्ट ऑफ थियरी। और मैंने पास मेरा खुद का एमटेक का प्रोजेक्ट था डेटा सेट, इसलिए मैंने शेयर किया हुआ है। सी, अभी रिसर्च पेपर पब्लिश करना हो तो आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैंने पूरा ये जो आपका ये होता है लिटरेचर सर्वे, वो मैंने रिमूव कर दिया। अदरवाइज तो सही में क्या होता है कि यू टू जस्ट रिफर दी एटलीस्ट 20 or 30 रिसर्च पेपर, यू टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, देन थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड देन पब्लिश। बट अभी मैं इतना सिंपल बता रहा हूँ कि आप रिसर्च पेपर फॉलो करो। अदरवाइज ये जो मैंने बताया डेटा सेट वगैरह समथिंग, ऐसे कोई भी डेटा सेट आपको जो ओरिजिनल जो वेबसाइट है डेटा सेट के लिए, केगल और UCI रिपोजिटरी, वहां से कोई भी डेटा सेट डाउनलोड करो, अप्लाई नंबर ऑफ टेक्निक्स एंड जस्ट मेक द कंपैरिजन एंड यू कैन पब्लिश। और टेक्निक्स बहुत सारी है, जैसे आपको शायद मशीन लर्निंग में ऐसा हो कि 5-6 टेक्निक है, नो, नंबर ऑफ मोर देन 50। क्योंकि जैसे मेरा प्रोजेक्ट था ACO में, एंड होगा स्वाम इंटेलिजेंसी, उसमें ही आई थिंक 15 से 20 टेक्निक्स है। So you can सर just make the टेक्निक्स comparison, so that if you are thinking about the... Yes, Rajat. सर टेक्निक्स मींस IR टेक्निक्स और दैट क्लासिफिकेशन? नो, हाँ, टेक्निक मीन्स क्लासिफिकेशन और मशीन लर्निंग। जैसे क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन के अंदर तो बहुत सारे टेक्निक है, जैसे डिसीजन ट्री है, नेव बेस है, न्यूरल नेटवर्क है, डीप लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क में भी वो बहुत सारे, मतलब जैसे कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, सिंगल लेयर, देन ये सब हो गया न्यूरल नेटवर्क का। रेनफोर्समेंट लर्निंग, उसमें भी ACO, तो ACO के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स है। ACO मीन्स एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स वन टेक्निक ऑफ द स्वार्म इंटेलिजेंसी। तो स्वार्म इंटेलिजेंसी में भी पाल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, सिमेट्री ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे टेक्निक है। वो थोड़ा मशीन लर्निंग में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आता जाएगा, स्टडी करते जाओगे, तो यू कैन अप्लाई एनीथिंग। यू कैन ऑल्सो जस्ट क्रिएट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एनी टेक्निक, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 टेक्निक्स, दैट इज ऑल्सो। और आपको ये आउट करना कि विच वन इज बेटर, दैट्स योर टास्क। ओके, चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे मतलब ये थोड़ा क्लासिफिकेशन इंग्लिश कंप्लीट हो जाए ना, देन वी कैन एम्प्लॉय एनी एल्गोरिथम, दैट्स वेब इंटेलिजेंस। जैसे ये रिकमेंडेशन था अपने सिलेबस में, फिर हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आना है। अभी तो स्टार्टिंग है, तो मैं थोड़ा रिसर्च पेपर के बारे में बता रहा हूँ, देन यू टू मूव टू द एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन। जैसे ये ऑनलाइन जो मार्केटिंग वाले जो अपना ब्रेन वॉश करके आपको जो परचेसिंग कराते हैं, कूपन देके, स्कीम देके, ये अच्छा है, बस इसके साथ ये ले लो, सस्ता होगा। तो किस तरह से रिकमेंडेशन करते हैं, आपने क्या लास्ट में सर्च किया था, वो कैसे फाइंड करता है, आपका इंटरेस्ट वो आपको फाइंड कर लेता है कि रजत का ये इंटरेस्ट है, उसको ये पसंद आएगा, उसको ये रिकमेंड करो, वो तुरंत परचेस कर लेता है। तो ये पूरा एनालिसिस होता है ना, वो अपने वेब इंटेलिजेंस से ही होता है। जितना होता थोड़ा बहुत हम ट्राई करेंगे, ज्यादा तो पूरा कंप्लीट ना हो पाए, बट वी विल ट्राई। ओके, एनीवे, attendance, and because otherwise your next faculty will be the class list.
Okay, Nisi present. Neil, Tilak, Kisan. Yes, sir. Okay. Umang present. Present, sir. Nimi, Yes, Tanay, sir. Aman, Present, sir. Present, sir. Nimit present, sir. Khushi, Krishna, Purva. પૂર્વાબેન નથી. બસ વિનોદ, નીલ, યુગ, You present, sir. Sir, Purva present. no one. Okay, Purva present. Yug, Mohit, Umehani, Ruturaj, Parth, Rutvik, Parth, Anand, Parth present, sir. Rutvik present, sir. ऋत्विक आया तो बीच में. Yeah. यस. आनंद, संजल, आनंद, संजना, क्रिनल, Present, sir. पार्थ, जय, निशांत. ओके. अंकित, रुचि, झील, पारस, Paras present, sir. क्रिनल. मैंने पारस, Yes, sir, Paras. पारस, पार्थ, पार्थ, वराजीत, चितांशु, प्रत्युष, रिकेन, Pratyush present, sir. Yes, sir, present. तुझा, पवन, Sir Murtaza present. Sir, Rikin present. Pratyush present, sir. इसको थोड़ा देख लो. हाँ, मैं कर देता हूँ. Yes. Rikin, Pratham, Tuja, Hisi, Abhishek. Okay, now let's verify the absent number. Present, sir. हाँ, let me check just. Sir, Aniket. कौन से अभिषेक? हाँ, एक मिनट. हाँ, अभिषेक present, अनिकेत present, ध्रुव present. Okay, बाकी स्टूडेंट्स. Okay, students, join next. Is it okay? Abhishek, Aman, Aniket, is present. Okay. Okay, guys, thank you. Is it okay? Okay. Guys, you may leave and join the next meeting. Sir, Hishit also present. Sir Chintan also present. Yes, Isit, I mark present. Sir, count present. Sir Chintan present. Okay. Sir, count present. Yes. Yes, Kavan. Let's verify the attendance. Now I think its screen is visible. But still it takes few seconds. Anyway, drop your enrollment number. Yes. Parth Parmar, I mark present. Nishant, I mark present. Okay, Rikin, I mark present. Done. जीत डन. जिन्होंने पहले स्क्रीन देख लिया दैट्स फाइन.
एब्सेंट नंबर एक बार बता देता हूं ऐसा हो तो। एनरोलमेंट नंबर 2, 36, 15, 16, 20, 26, 29, 33, 34, 40, 41, 42, direct 44 and 47. These are the absent number. हेलो सर। Yes, you. सर आज हमारे